English language trainer and great motivator. Hello everyone, good morning to all of you. Today I am very happy because you got me a golden chance to say something. Today I am start my new topic. My topic name is Never Give Up. So my dear friends, listen carefully. Guys, everyone is know success does not happen in one day. We should keep trying to reach success in life. We should not give up when you fail in our attempts. We should make up your mind to failure in a positive way. Giving up is failure is approach that will not lead to a successful life. Because everyone is know life is the race, because it is all about winning, but winning is not an ending point. You should understand no one has get achievement in one day. You do know every successful people did not become popular in one day. It took him lot of failures and challenges to become what is he today. When you not give up, you try till and you meet success in life. We all would hear these lines, failure are the stepping stone of success. How many of us have you succeed in you try in first time? I think no many. This proves that success does not attain in one day. Everyone know is great scientist Thomas Edison. Do you know everyone? Okay, I can explain his story. His success story is really motivating. Edison on his experiment light bulb. ये वो इंसान है जिन्होंने हमें लाइट मिलाया. And he failed 10,000 times, but his attitude is toward failure are simply great. He confidently said, "I'm not failing thousands times. I found thousands way how I cannot make a light bulb." In life, if you give up easily, you cannot taste the flavor of success. If take years for the tree to give him the tasty fruit, similarly even years for make success. The path of success can be very rough and very hard, but you go without any lack of confidence, the day of success is not really far away. Life gave us 1,000 reasons you give up easily, but life give us one reason you try once more time. Because I just wanna say, do not keep break up working hard. If someone is laughing at you, it's okay. Someone is pulling your leg, pulling your back down, it's okay. You just keeping working hard, you just keeping looking up the sky, and you reach success in life. No matter what you protect in yourself for your dream yourself, nobody else can. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मेरा ये टॉपिक है नेवर गिव अप, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट करती है. अगर आप लोग मुझे अपॉर्चुनिटी दें तो मैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ. ओके. पर्सिया का एक सुल्तान था. पर्सिया में एक सुल्तान था. उसने दो लोगों को मौत की सज़ा सुनाई और दोनों को बुलाया. और आप लोग जानते हैं कि फांसी की सज़ा होने से पहले उनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है. तो जस्ट लाइक डेट उस सुल्तान ने उन दोनों से उनका आखिरी इच्छा पूछा. पहले वाले से पूछा, तुम अपनी आखिरी इच्छा बताओ. तो उसने कहा, हुजूर मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं है. उसने कहा ठीक है. फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो तुम बताओ. वो आदमी जानता था कि उस सुल्तान के पास एक घोड़ा है, जिस वो घोड़े से उस सुल्तान काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है. तो उसने कहा कि हुजूर अगर आप मुझे 6 महीने का टाइम दो तो मैं आपके इस घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ. तो मेरे पास एक ऐसी विद्या है कि मैं इस घोड़े को 6 महीने में उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ. तो सुल्तान ने कहा वाकई तो ऐसा कर सकता है? तो उसने बोला बेशक. तो सुल्तान ने सोचा कि अगर ऐसा हो गया तो मेरे पास मतलब मैं दुनिया का एक ऐसा इकलौता सम्राट हूँगा जिसके पास उड़ने वाला घोड़ा होगा. तो उसने कहा कि सुल्तान ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस आदमी ने कहा कि महाराज मैं तो अब भी आपका कैदी हूँ, अगर ऐसा ना हुआ तो आप मुझे गोली मार देना. तो सुल्तान ने कहा डन. एग्रीमेंट साइन हो गया. फिर दोनों दोस्त रात को
जब वो कारागाह जेल में आए कोठरी में, तो पहले वाले ने पूछा जिसे कल फांसी पर लटकना था, उसने कहा दूसरे वाले से, तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे पास ऐसी विद्या है, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे पास कोई ऐसी विद्या नहीं है। उस इंसान का जवाब सुनिएगा आप लोग। उसने कहा कि मैंने अपने आप को 4 संभावनाएं दी। आई हैव गिवन मी माई सेल्फ 4 पॉसिबिलिटीज़। नंबर 1, घोड़ा बूढ़ा हो गया है, क्या पता महीने 2 महीने में घोड़ा ही मर जाए। नंबर 2, राजा भी कौन सा जवान है, क्या पता राजा ही मर जाए। नंबर 3, मैं भी क्या पता नेचुरल डेथ मर जाऊं, कम से कम तुम्हारी तरह फांसी पर तो नहीं लटकूंगा। और नंबर 4, क्या पता घोड़े को उड़ा ही दूं। इस बात से ये प्रूफ होता है कि मौत के एंड समय तक भी वो इंसान अपना दिमाग चलाना नहीं भूला, ना ही वो हार मान रहा है कि हम मरेंगे कल, बिल्कुल नहीं हार मान रहा है। वो वहाँ भी अपना दिमाग यूज कर रहा है और वहाँ भी वो कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है और उसने उस सुल्तान को चैलेंज कर दिया एक इनडायरेक्टली तरीके से। फिर उसने कहा कि अगर इन चारों में से कुछ भी ना हुआ फिर भी मैं तुमसे 6 महीने ज़्यादा जीऊँगा। दिस प्रूव दैट यू गिव अप इजीली इन योर लाइफ, यू कैन नॉट टेस्ट द फ्लेवर ऑफ सक्सेस। प्लीज वन मोर टाइम। मैं आप लोगों के सामने एक और चीज़ रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बना ये आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार कि तिनका तिनका उठाना होता है। कभी भी लाइफ में गिव अप करने से पहले ये जरूर सोचना कि शुरू क्यों किया था, जब गिव अप ही करना था तो शुरू क्यों किया था। सो नेवर गिव अप इन योर लाइफ एनी सिचुएशन। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच।